Hello students, welcome to Learn with Hema's class. Today I shall be explaining you 8th class English Unit 1 chapter number 1.2 which is named as Dick Whittington and his cat. Now this story, Dick Whittington and his cat, is on how a boy who was poor and homeless had no one to look after, how he turns out to be the mayor of London. And this is a very inspiring story. As I said you in my previous lecture, previous session, that I shall be explaining you the chapter and make you work out with your warming up exercise as well as workshop. So here we start with our warming up exercise. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. Now let's start the video. The first question in the warming up exercise is discuss the following in groups and write the answers. Now here there are 4 pictures of notable personalities. I think we all know these 4 great people, great personalities. The first one is Dr. APJ Abdul Kalam. I believe everyone knows him. The second one is Abraham Lincoln. He is such a famous personality, such a simple person in life, highly motivated. The third one is of course Charlie Chaplin, who makes us laugh and he earns his living through that. He earned his living through that, sorry. And the last but not the least is Kalpana Chawla, a small village girl but had huge dreams to live into the space and finally gave up her life by living into the space. Now guess the type of hardships, next B question in this, guess the type of hardships they must have faced in their childhood. Now each of 4 of them, what hardships they have faced in their childhood. Now if I talk about APJ Abdul Kalam, he was poverty stricken, he was not at all rich. His father used to sell newspapers and even he used to sell newspapers. In fact, his father was a priest also. They were very poor. Second, if we talk about Abraham Lincoln, then Abraham Lincoln, he was brought up by his mother. If third we talk about Abraham Lincoln did not had father, then third we talk about Charlie Chaplin. Charlie Chaplin he used to work to earn. So only if he wanted to have something to eat something, then he need to earn for that, and for that he always worked. That was his life. And lastly, Kalpana Chawla, she was a village girl. Now third one, what strong qualities possessed by them could have helped them achieve such success and fame all over. Now anyways, if you want to achieve success or you want to be famous, definitely it is not easy. It is not an easy work. You need to do a lot of hard work. So what hard work these great personalities did, or what qualities they had which made them reach the level they were. So the strong qualities, the first one was perseverance. Second one, they were single and unpretentious lifestyle. They had simple and unpretentious lifestyle, मतलब बिल्कुल extravaganza नहीं था, कोई style नहीं मारते थे, कुछ नहीं. Third, they had determination to do something, so determination. And fourth one, commitment. They had commitment towards their work. Now the D question, how do stories or biographies of such famous people help youngsters? मतलब इनकी स्टोरीज़ या बायोग्राफीज़ पढ़कर ये जो यंग बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं उनको कैसे हेल्प होता है. सबसे पहली बात, ऐसे बायोग्राफीज़ पढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है. बहुत वैल्यूएबल लेसन्स हमें मिलते हैं, बहुत कीमती बातें हमें पता चलती हैं उनके लाइफस्टाइल से, और इनफैक्ट उनका लाइफस्टाइल हमें इंस्पायर करता है. सो फर्स्ट पॉइंट वी कैन राइट इज़ वैल्यूएबल लेसन्स. वी लर्न वैल्यूएबल लेसन्स. सेकेंड, वी लर्न द यंगस्टर्स आर इंस्पायर्ड बाय देम. Third, when they get inspired, they motivate others. तो third point we can write motivate others. Of course, अगर हम किसी से मोटिवेट हो रहे हैं, अगर हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, तो हम डेफिनेटली दूसरों को मोटिवेट करेंगे उनसे इंस्पायर होके. एंड द लास्ट वन इज these biographies teach the youngsters to face the challenges. Youngsters challenges face करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं. So these are the 4 points. Now if we come to the syllable part, next second one, a syllable
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, ये आप लोगों को समझने के लिए। आज से पहले 7th स्टैंडर्ड तक आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। सिलेबल मीन्स व्हाट? देखो, सिलेबल वो होता है जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो वो वर्ड एक ही वर्ड है, या हम उसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, या 3 भाग में तोड़ सकते हैं, या 3 से ज़्यादा भाग में तोड़ सकते हैं। 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable, 4 syllable और more than 3 syllable you can say। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे ए इज़ 1 syllable, आई, सी, एट, ऑन, मैन, विथ, थ्रेड, ये सब 1 syllable वर्ड है। नॉट 2 syllables, 2 syllable वर्ड देखो आप, मदर, राइट, हम 2 वर्ड इसको ब्रेक कर सकते हैं, मदर, सीटेड, जीराफ, पैरट, एक्टिव, हैप्पी, ठीक है, हम इन सबको 2-2 में ही तोड़ सकते हैं, 3 में चाहे तो भी नहीं तोड़ सकते, तो दीज आर 2 syllables। 3 syllables जिनको हम डेफिनेटली 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, हैप्पीनेस, वंडरफुल, एनिमल, सरप्राइजिंग, एडवेंचर, इग्नोरेंस। तो इन सभी वर्ड्स को हमने 3-3 पार्ट्स में तोड़े हैं, तो 3 syllables हो गए हैं। एंड मोर देन 3 syllables मतलब 3 से भी ज़्यादा पार्ट में हम इन वर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। आप नॉर्मली जब स्पेलिंग्स लर्न करना चाहते हो, स्पेलिंग सीखना चाहते हो कि हम कैसे स्पेल करें किसी भी वर्ड को, तो हमको सिखाया जाता है ब्रेक द वर्ड एंड स्पेल देम। तो ब्रेक द वर्ड मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेबल्स में उसको ब्रेक कर रहे हैं। कॉन्सीक्वेंटली, ये 4 syllable वर्ड है। एनकरेजमेंट, ये भी 4 syllable वर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 6 syllables हो गए। आइडेंटिफाइंग, ये 4 syllables। एनसाइक्लोपीडिया, ये 5 syllables। तो इस तरह से आपने देखा ये syllables है, हमने किस तरह से वर्ड्स को ब्रेक किया। बट बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन, सिलेबल्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से आएगा, सो ये प्रिपेयर करके रखना। और जितने भी वर्ड्स आपके आसपास में हैं, चाहे आपके पेरेंट्स के नाम हैं, तो पेरेंट्स के नाम को भी आप ब्रेक करने की कोशिश करो। अपने खुद के नाम जो हैं, आप खुद के नाम को ब्रेक करो। क्या वो 1 syllable में बोला जा सकता है? अभी मेरा नाम हेमा है, तो मैं उसको ब्रेक करूँगी, हे माँ, 2 syllables हैं मेरे नाम में। और वैसे ही जैसे इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया 3 syllable है। इस तरीके से हम इन वर्ड्स को ब्रेक करते हैं और उनके सिलेबल्स पता कर सकते हैं। या फिर वर्ड आपको दिया रहेगा और आपको कहेंगे उनको ब्रेक करो एंड सिलेबल्स में कन्वर्ट करो। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये स्टोरी एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि डिक जो है एक छोटा सा गरीब लड़का था, साउथ इंग्लैंड में रहता था। तो एक बार उसने कभी सुना किसी के, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि लंदन की जो सड़कें हैं वो सोने की बनी हुई है। तो जब उसने सुना ऐसा कि लंदन की सड़कें सोने की बनी हुई है, तो क्यों ना मैं वहाँ चला जाऊँ और थोड़ा बहुत सोना ले लूँ और अमीर बन जाऊँ, क्योंकि लोग अमीर आदमी की इज़्ज़त करते हैं, गरीब आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं करता। ये उसको पता था यहाँ पे, क्योंकि वो गरीब था और उसके पास घर नहीं था, उसके पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके थे। तो इसके लिए वो वहाँ से निकल पड़ा लंदन जाने के लिए। अब ये पैराग्राफ में रीड कर लेती हूँ। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England। है ना, एक छोटे से विलेज में रहता था साउथ ऑफ इंग्लैंड में, और उस बॉय का नाम क्या था? डिक विटिंगटन। He had no proper home for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers। कोई प्रॉपर घर नहीं था, पेरेंट्स उसके मर चुके थे और लोग उसको बहुत ही अनकाइंडली ट्रीट करते थे, बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। One day Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich। तो एक दिन उसने कुछ लोगों से ऐसे ही कहते हुए सुना कि लंदन की जो स्ट्रीट्स है, सड़कें हैं जो सोने की बनी हुई है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो वहाँ जाएगा और वो अपना नसीब खुद बनाएगा और वो गोल्ड पीसेस स्ट्रीट से लेके अमीर बन जाएगा। और उसको पता है कि अमीर बनने पर कोई भी उसको बुरे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता है। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंडन। He had not gone far when a man in a cart
stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. सो यंग डिक जो है ये निकल पड़ा लंदन के लिए, ठीक है। अब वो ज़्यादा दूर नहीं गया था अपने गांव से कि अचानक से उसके सामने एक कार्ट घोड़ा गाड़ी आके रुका और उसमें जो घोड़ा गाड़ी जो चला रहा था उसने पूछा क्या तुम घर से भाग रहे हो? तो वो कहा नहीं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं तो लंदन जा रहा हूँ। तो वो जो कार्ट जो चला रहा था उसने क्या बोला कि ठीक है कि तुम लंदन जा रहे हो, मैं भी लंदन जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, रास्ता साथ में कट जाएगा। नाउ लेट्स सी, आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेट द कार्टर। कार्टर यानी जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था। जंप अप हियर इन बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। आप यहाँ पे बैठ जाओ मेरे बाजू में और हम दोनों साथ में चलेंगे। अब चलते चलते दोनों के दोनों रात होने से पहले वहाँ लंदन पहुँच गए। अब लंदन पहुँच के उस घोड़े गाड़ी वाले ने तो उसको वहीं पर उतार दिया रास्ते पर और ख़ुद तो चला गया इन में। इन मीन्स होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, जहाँ पर रात को स्टे किया जा सकता है। So they arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn. Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. अब बेचारा डिक अकेला खड़ा था पूरे रास्ते में और चारों तरफ देख रहा था और बहुत ही डिसअपॉइंटेड था वो। डिसअपॉइंटेड क्यों? क्योंकि उसने उसको रास्ते में कंपनी तो दे दी लेकिन यहाँ पर अकेला छोड़ दिया उसको। Where was all that fine gold? अब डिक बेचारा ढूंढ रहा है कि अरे गोल्ड कहाँ है, लंदन की स्ट्रीट्स तो गोल्ड की बनी हुई थी, गोल्ड कहाँ है। ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। और जहाँ पर भी देखो वहाँ तो गंदी गंदी सड़कें और बहुत सारे अनफ्रेंडली पीपल आसपास में थे। ही हैड नो वेयर टू स्लीप एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली वेयर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म। अभी उसके पास तो कोई जगह नहीं थी क्योंकि कार्ट वाले ने तो उसको रास्ते पे ही छोड़ दिया और ख़ुद तो चला गया इन में, लेकिन यहाँ पर ये बेचारा रास्ते पर अकेला रह गया। अब उसके पास कोई जगह नहीं थी तो फाइनली थक हार के उसने अपने लिए जगह ढूंढ ली। उसने 2 बिल्डिंग के बीच की जगह अपने लिए ढूंढ ली कि यहाँ पर वो रात को सेफ रहेगा। एली मीन्स कॉर्नर प्लेस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, एक नैरो पैसेज बिटवीन 2 बिल्डिंग्स या बिल्डिंग के पीछे की जगह। छोटी सी जगह होती है जहाँ पे नॉर्मली हम पार्किंग करते हैं या कुछ नहीं रहता है, वहाँ पे छोटा एक पैसेज टाइप ही रहता है बस, दैट इज़ कॉल्ड एन एली। तो डिक जो है वहाँ पर एली में रुक गया। वेर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म, जहाँ पर उसको लगा कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी या कोई जानवर वगैरह नहीं आएगा उसको काटने के लिए। अब रात तो निकल गई कैसे भी करके। अब अगली मॉर्निंग सुबह उठा तो क्या देखता है, चारों तरफ ठंड ही ठंड है, भूख लगी हुई है, एकदम दयनीय स्थिति बनी हुई है, मिजरेबल। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। अब नेचुरली सुबह उठते ही हमें भी भूख लगती है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, बेचारे डिक को भी भूख लगी, बट करे तो क्या करे, ना उसके पास पैसे थे, ना कोई किसी के पास कुछ खाना मांगने जाता तो सब उसको हकाल देते, गालियाँ देते और भगा देते। कोई लोग तो उसे मारते थे, सर पे मार देते थे। He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. अब ये जो देखो बच्चों आप देख रहे हो, "Go away, you lazy fellow! Be off with you", ये है ना पंक्चुएशन के लिए सेंटेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ओपन इन्वर्टेड है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है एंड अगेन कॉमा क्लोज इन्वर्टेड मार्क है, and aimed angry blows at his head and then full stop, राइट। तो ये सेंटेंस जो है पंक्चुएशन के लिए आप मार्क कर लो। इसमें जितने भी ओपन इन्वर्टेड क्लोज इन्वर्टेड वाले सेंटेंसेस आपको दिखेंगे आप उन्हें मार्क कर सकते हो फॉर पंक्चुएशन मार्क्स। नाउ एट लास्ट थक हार के वो बच्चा जो है डिक जो है गिर गया, क्योंकि अब तो ना उसमें चलने की हिम्मत थी, ना किसी से कुछ मांगने की हिम्मत थी, फूड भी मांगने की हिम्मत नहीं थी। इतना बेचारा थक गया था, इतना कमज़ोर हो गया था कि वो चक्कर आके नीचे गिर गया। ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फॉर फूड। मतलब इतना कमज़ोर हो गया कि वो खाना भी नहीं ढूंढ पा रहा था अपने लिए। लेकिन उसका नसीब, जिस घर के सामने डिक गिरा था वो एक रिच मर्चेंट का घर था जिनका नाम था मिस्टर फिट्ज़वॉरन। अभी उस फिट्ज़वॉरन की जो कुक थी वो बहुत ही खड़ूस थी, तो वो कुक जो है डिक को अपने घर के सामने से भगा रही थी। तो जब वो डिक को भगा रही थी उसी वक्त फिट्ज़वॉरन जो है अपने शिप से रिटर्न हो रहे थे,
क्योंकि वो मर्चेंट थे, वो शिप वगैरह अपने इंस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं पोर्ट्स पे वगैरह, तो वो वहाँ गए थे, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी कुक डिक को भगा रही है तो उन्होंने कहा, अरे इसे क्यों भगा रही हो, रुको थोड़ी देर। और फिर वो डिक को पूछते हैं, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। तो बोलता है डिक कि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता हूँ और जो मुझे काम दे। सो लेट मी रीड दिस थिंग। By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" तो वो रुक कर डिक को बोले कि तुम काम क्यों नहीं करते अगर तुमको खाना चाहिए तो डिक क्या कहता है, "I would work," said Dick, "but I know nobody who will give me anything to do." मैं किसी को नहीं जानता जो मुझे कोई काम करने यहाँ पे देंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में भी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स पंक्चुएशन मार्क्स देख लो। टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवॉरेन ऑर्डर्ड द कुक, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। तो मिस्टर फिट्जवॉरेन ने क्या कहा, बहुत ही अच्छे आदमी थे वो, तो उन्होंने कहा कि उसको अंदर लेके जाओ, पहले उसको कुछ खाने को दो और फिर उसके लिए कुछ काम जो भी उसके लायक होगा उसे दो। So Dick was now given a home for living and he had a small corner of the attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. अब डिक को घर मिल गया, एक रहने के लिए छोटा सा एटिक था उसके पास में। एटिक घर के जो ट्रायंगुलर छत होता है उस छत में बना हुआ एक छोटा सा कमरा होता है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ठीक है एक आदमी तो वहाँ सो ही सकता है। और उसका काम क्या था, वहाँ पे जो कुक थी उसको जो भी चाहिए सामान, पॉट्स पेन्स पकड़ाना, धोना, ये सब काम उसका था वहाँ पे। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज टू फेस। अभी डिक का लाइफ पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था, लेकिन फिर भी अभी भी उसको 2 डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा था। अब ये 2 डिफ़िकल्टीज़ क्या है। पहली डिफ़िकल्टी, जहाँ वो एटिक में रहता था वहाँ एटिक में इतने चूहे थे, रैट्स एंड माइस, इतने चूहे थे कि वो रात भर सो नहीं पाता था। कई बार तो सब उसके ऊपर से ऐसे गुजरते रहते थे। अब नॉर्मली पुराने घर रहते हैं, ऐसी कोई जगह होती है कॉर्नर की जगह जहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, तो चूहे वगैरह वहाँ पे एक आम बात थी। सो एट नाइट दे स्कैम्पर्ड मीन्स मूव्ड अराउंड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट कुछ समय बाद तो उसने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली एंड उसने अब जो उसको यहाँ पे पगार के रूप में जो पेनीज़ मिलते थे, पैसे जो मिलते थे, उससे बचा के उसने एक कैट ख़रीद ली थी अपने लिए। और ये कैट जो है बहुत ही अच्छी माउज़र थी, तो वो थोड़े ही दिन में डिक की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। कैट ने सारे के सारे माउस को खा लिया और अब डिक आराम से सो सकता था, पीसफुली सो सकता था। अब जो दूसरी डिफ़िकल्टी थी वो आसानी से वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था। द अदर डिफ़िकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम वॉज द कुक्स बैड टेम्पर। वो जो कुक थी ना, उसका टेम्पर बहुत ख़राब था। वो कुक जो है, शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे। वो रोज़ पूरा दिन डिक के ऊपर चिल्लाती रहती थी और डिक को मारती भी थी। कई बार उसके सर पे वुडन स्पून से मार देती थी, कभी कुछ किसी पेन से मार देती थी और बिना मतलब के मारती थी। डिक बेचारा अपना पूरा काम करता है, फिर भी जी जान से मन लगा के काम करता है, फिर भी उसको मारती थी। तो एक रात डिक ने डिसाइड किया कि यार अभी इसके साथ नहीं रहना है, अब मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो वो अपनी कैट को लेकर निकल गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर। अपना काम धंधा कहीं और ढूंढने के लिए वो निकल गया। द टू ऑफ देम वॉक्ड एज फार एज हॉलोवे ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन। वो लोग एकदम मतलब चल के थोड़े से लंदन के बाहर ही निकल गए थे, हॉलोवे तक पहुंच गए थे। देन डिक सेट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट। तो वहाँ पर वो एक स्टोन पे बैठ गया रेस्ट करने के लिए। इट वॉज द 1st of November, ऑल सेंट्स डे। उस दिन जब वो वहाँ बैठा था वो 1 नवंबर, तारीख क्या थी उस दिन, 1 November, और दैट वॉज कॉल्ड एज ऑल सेंट्स डे एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग। ऑल सेंट्स डे था, सब लोग प्रेयर के लिए गए थे, चर्च के बेल्स रिंग हो रहे थे। जैसे डिक बैठा था और वो सुन रहा था कि ये बेल्स कैसे रिंग कर रही है, वो बेल्स के आवाज़ को समझने की कोशिश कर रहा था और फाइनली उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये बेल्स जो रिंग हो रही है वो उसके लिए एक मैसेज दे रही है। और वो क्या मैसेज था,
Turn again, Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London. Lord Mayor of London, said Dick. I should like to be the Lord Mayor and ride in a fine coach. यानी वो बेल्स जो हैं उसको ये बोलना चाह रही थी कि तुम वापस चले जाओ जहाँ से आए हो, तुम एक अच्छे वर्दी सिटीज़न हो और तुम एक दिन लॉर्ड मेयर बनोगे. सो आई शुड लाइक, ऑफकोर्स मेयर बनना कौन नहीं चाहेगा, जो सबसे बड़ी पोस्ट है. तो उसने भी कहा ठीक है, मैं भी मेयर बनना चाहूँगा, मैं भी फाइन कोच में ट्रेवल करूँगा. आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक इफ़ दैट इज़ वॉट इज़ इन स्टोर फॉर मी. तो बोलता है थोड़ा बहुत तो मैं डांट सहन कर ही लूँगा, अगर मुझे लॉर्ड मेयर ही बनना है लंदन का तो थोड़ी बहुत डांट तो मैं सहन कर ही लूँगा. आई कैन पुट अप विथ मतलब थोड़ा सा सहन कर लेना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसी बातें होती हैं, तो ये वही चीज़ है. सो डिक एंड हिज कैट retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. तो डिक और उसकी कैट जो है वापस से उल्टे कदम वहीं पहुंच गए मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर. लकीली अभी तक किसी ने ये पता नहीं लगाया था कि ये दोनों गायब थे, और सबके ये पता करने से पहले ही वो वहाँ वापस पहुँच गए थे, तो गायब होने की तो बात ही नहीं थी. सो नाउ मिस्टर फिट्जवॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विथ अदर कंट्रीज. He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods and that could be sold at home. अभी मिस्टर फिट्जवॉरेन का काम क्या था? उनका काम था शिप्स को सेंड करना, और शिप्स के अंदर वो लोग गुड्स रखते थे बहुत सारे. कैप्टन उन गुड्स को दूसरे कंट्रीज़ में ले जाकर सेल करते थे, और वहाँ से दूसरे गुड्स लेकर आते थे या पैसा लेकर आते थे यहाँ पर गुड्स को सेल करने के लिए. तो एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ. वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर. मिस्टर फिट्जवॉरेन ने अपने घर के सभी लोगों को बुलाया एक साथ में, और उन्होंने कहा कि मैं एक शिप जो है अफ्रीकन कोस्ट में भेज रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए. अगर आपके पास में भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आप वहाँ बेच सकते हो तो आप लोग यहाँ पर दे दो, मैं उस शिप में भेज दूँगा. सभी ने कुछ न कुछ दे दिया, बट जब डिक को पूछा कि यू वोंट गिव एनीथिंग, तो ही सेड मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे कैट के. तो मिस्टर फिट्जवॉरेन बोले तो ठीक है, फिर तुम तुम्हारे कैट को ही भेज दो. तो एलिस मिस्टर फिट्जवॉरेन की डॉटर थी, बेटी थी. एलिस ने कहा कि पापा डिक के पास इस कैट के अलावा और कोई नहीं है, तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ रख दूं. तो मिस्टर फिट्जवॉरेन बोले नहीं, सबको अपनी अपनी ही चीज़ रखनी पड़ेगी, कोई किसी के लिए चीज़ नहीं रख सकता है. तो डिक बेचारा बड़ा उदास होकर उसने अपनी कैट लेकर आया, और वो कैट उसने कैप्टन को मिस्टर फिट्जवॉरेन को दे दी. मिस्टर फिट्जवॉरेन ने कैट कैप्टन को दे दी, शिप के कैप्टन को. शिप का कैप्टन तो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि ये कैट जो थी वो एक एक्सीलेंट माउज़र थी. माउज़र मतलब बहुत अच्छे अच्छे चूहे वगैरह खा लेती थी, तो उसको तो कोई ट्रबल ही नहीं था उसको ले जाने, क्योंकि उसका गुड्स सेफ़ रहता था, चूहों से एटलीस्ट कोई नुकसान नहीं होता था. तो कुछ महीनों के बाद में वो शिप जो है एक अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंच गई, जिसका नाम था बारबरी. अफ्रीकन के कौन से कोस्ट पे पहुंची थी? बारबरी. और वहाँ के लोगों को मूर्स कहा जाता था. क्या कहा जाता था? मूर्स. अभी मूर्स क्या है? मूर्स एक अपलैंड एरिया है, हाईलैंड एरिया जो हम बोलते हैं, ये अनकल्टिवेटेड एरिया होती है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको मूर्स कहते हैं, अनकल्टिवेटेड एरियाज़. यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्पल कलर का यूरेशियन फ्लावर जो है वो ग्रो होता है. तो ये मैं वापस आपको बता देती हूँ. वो लोग पहुँचे अफ्रीका के कोस्ट पे पहुँच गए, जिसका नाम था बारबरी, और वहाँ के लोगों को मूर्स कहते थे. अब कैप्टन ने जो है एक मैसेज भेजा उस एरिया के जहाँ बारबरी वो लोग थे, वहाँ के किंग के लिए एक मैसेज भेजा कि वो आया है ट्रेडिंग करने के लिए. तो किंग ने उसको बुलाया अपने पैलेस में और उससे बातें करने लगे. जब वो लोग बातें कर रहे थे तो फूड सामने लाया गया. अभी नेचुरली आपके घर पे भी कोई गेस्ट आता है तो आप भी उनको कुछ खाने पीने के लिए पूछते हो, तो फूड उनके सामने लाया गया. तो जब फूड लाया गया सामने, चुटकी बजाते ही मानो सारा का सारा फूड गायब हो गया. अब गायब कैसे हुआ? इतने चूहे थे वहाँ पे कि सारे के सारे चूहे आ गए और सारे के सारे चूहे खाना सारा खा गए. तो अब कैप्टन बोलता है ये क्या है? वो शॉक था कैप्टन. ही वॉज एस्टॉनिश्ड एंड आस्क्ड इट वॉज दैट नॉर्मली, क्या ये नॉर्मली होता है? तो अलास येस केम द रिप्लाई, द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रेड्स एंड माइस एंड वी कैनॉट गेट रिड ऑफ देम.
तो वहाँ के किंग ने कहा कि हमारी कंट्री जो है रैट्स के प्लेग से सफ़र कर रही है एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। अभी रैट्स और माइस जो है दोनों में साइज एंड कलर का डिफरेंस है। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप। अब कैप्टन बोलता है कि ठीक है, आप भले ही अभी तक आपने परेशानी झेली है लेकिन आपके परेशानियों का आंसर मेरे पास में है, डोंट वरी। वो मैसेज भिजवाता है अपने शिप पर और डिक की कैट को लेकर आया जाता है। अब जैसे ही और फूड सामने ले किया गया और फूड रखते हैं सामने कैप्टन और किंग क्वीन के सामने, और सारे रैट्स और माइस वापस से आ जाते हैं फूड खाने के लिए। अब जैसे ही रैट्स और माइस आते हैं फूड खाने के लिए, ये कैट जो है उन सब के ऊपर टूट पड़ती है और सब बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ डर के मारे कि अरे कौन आ गया कौन आ गया, और सारे के सारे रैट्स जो है चले जाते हैं। एवरीवन वाज डिलाइटेड, सबके सब एकदम खुश हो जाते हैं। एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। मे बी इन लोगों ने पहले कभी किसी कैट को देखा ही नहीं था, इसीलिए वो पूछ रही थी क्वीन कि इस एनिमल को तुम क्या कहते हो। वेल पुस इज़ द नेम शी आंसर्स टू। तो पुस इज़ द नेम शी आंसर्स टू, यानी उस कैट का नाम क्या था, पुस। मतलब आप उसको पुस करोगे, बोलोगे पुस पुस, तो वो आपके पास आएगी। said the captain, and when the queen called puss puss, the cat went over to her and purred. पुर्ड मतलब चाटना। अभी कैट डॉग ये एनिमल्स जो हैं घर पे जिसके भी हैं, आप देख सकते हो कि जैसे ही आप उनको गोद में बिठाते हो या पास में बिठाते हो तो वो अपना चाटना चालू कर देते हैं। सो एवरीवन वाज डिलाइटेड। क्वीन को भी पुस पुस उसने भी हाथ में लिया। एंड द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड, लेकिन जैसे ही वो चाटने लगी कैट, क्वीन थोड़ी सी अलार्म्ड हो गई, थोड़ी सी शॉक कि अरे कहीं वो काट ना ले मुझे। तो लेकिन कैप्टन ने उसको कहा कि डोंट वरी, ये दिखने में फियर्स है लेकिन बहुत ही क्वाइट एनिमल है, तो एंशियस मत हुआ, बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, ये सिर्फ रैट्स और माइस पर ही अपना अटैक करती है और ये बहुत जल्द आपके किंगडम को भी रैट्स और माइस से रिड कर देगी। तो आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा कि मैं तुमको जितनी दौलत चाहिए उतनी दूंगी, लेकिन ये एनिमल तुम मुझे दे दो। तो कैप्टन ने बार्गेनिंग स्टार्ट की, यानी ट्रेडिंग स्टार्ट की, और ट्रेड करते करते कैप्टन ने अपने शिप का सारा सामान बेच दिया। किंग ने सारा सामान खरीदने को एग्री कर लिया, प्लस कैट के लिए 10 टाइम्स जितना उन्होंने कार्गो के लिए दिया है पैसा, उसका 10 टाइम्स उन्होंने कैट के लिए दिया। तो कैप्टन तो खुश होकर वापस रिटर्न हो गया, मिस्टर फिट्ज़वॉरेन के पास आया। मिस्टर फिट्ज़वॉरेन को उसने सारी कहानी बताई और उसने ये भी कहा कि किस तरह से कैट के बदले में इतना सारा पैसा मिला। तो मिस्टर फिट्ज़वॉरेन ने डिक को बुलाया और डिक को कहा, डिक नाउ यू आर अ रिच मैन, अब तुम सक्सेसफुल हो गए हो, एक मर्चेंट बन गए हो, ये तुम्हारे कैट का पैसा है। और बेचारा डिक जो है, जो गरीब था, लंदन आया था, अब वो एक अमीर आदमी बन गया था। और फिर बड़े होने के बाद में डिक ने एलिस के साथ, जो मिस्टर फिट्ज़वॉरेन की बेटी थी, एलिस के साथ शादी कर ली और फिर वो 3 बार कंटिन्यूसली इलेक्ट हुआ था लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लॉर्ड मेयर बना था। इनफैक्ट एक बार तो उसको नाइटहुड शिप भी मिली थी। नाइटहुड शिप एक हाईएस्ट टाइटल है जो दिया जाता है, जो टाइटल मिलने के बाद में आप अपने नाम के आगे सर रिचर्ड लगा सकते हो। तो सर रिचर्ड विटिंगटन, क्योंकि जैसे ही पैसा आ गया डिक के पास में, तो मर्चेंट जो है उसने उसको बोला कि आज से तुम मिस्टर फिट्ज़वॉरेन के नाम से जाने जाओगे, लेकिन अब नाइटहुड मिल गया तो उसको सर रिचर्ड विटिंगटन के नाम से जाना जाएगा। अब वो फेमस ही नहीं बना बल्कि पॉपुलर भी हो गया, क्योंकि वो पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ही यूज्ड टू हेल्प द पुअर विथ हिज मनी एंड समटाइम्स व्हेन ही वाज ओल्ड, और जब वो ओल्ड हुआ तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को अपने कैट की और अपनी स्टोरी सुनाया करता था। और किस तरह से जब वो लोग हॉलोवे पहुँचे थे और वो सेंट्स डे था, ऑल सेंट्स डे, तो किस तरह से वो जो बेल रिंग हो रही थी, टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तो किस तरह से इस बेल्स ने, इन रिंगिंग बेल्स ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। मैंने थोड़ा क्विक किया है, टाइम नहीं लगाया क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे वर्कशॉप भी एक्सप्लेन करना है। तो अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, आई बिलीव कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाओगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख भेजना, तो मैं आपको उसके आंसर्स दे दूँगी। मैं सीधे जाती हूँ बी पर।
रिमूव द अफिक्सेस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड राइट द रूट वर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने लास्ट ईयर भी करी थी। रिमूव द अफिक्सेस, अफिक्सेस अब हम दो चीज़ लगाते हैं किसी भी वर्ड को, प्रीफिक्स लगाकर वर्ड बनाते हैं, कभी कभी सफिक्स लगाकर भी वर्ड बनाते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले लगाया जाता है, सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद में लगाया जाता है। तो द फर्स्ट वर्ड इज सक्सेसफुल। अब इसमें हम सक्सेस के अलावा और कुछ भी नहीं है जो हम निकाल सकते हैं। फुल निकाल दिया तो बचा सक्सेस, तो सक्सेस इज योर रूट वर्ड। सेकेंड में आप देख लो इमीडिएटली, इमीडिएटली में मीडिएट इज द रूट वर्ड। क्या है रूट वर्ड? मीडिएट। आप इमीडिएट लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमको अफिक्सेस निकालने हैं। इम, आई एम इम, इम भी एक प्रीफिक्स होता है, तो अगर पहले स्टार्टिंग में हम आई एम इम निकाल देंगे और लास्ट में एल वाई निकाल देंगे तो मीडिएट, मीडिएट ये आपका रूट वर्ड बनता है। रिट्रेस, रिट्रेस से री निकाल दोगे तो ट्रेस बचेगा। देन माउजर, माउजर में से लास्ट में से हम आर निकाल देंगे तो माउस बचेगा। अनफ्रेंडली, तो स्टार्टिंग में अन और लास्ट में एल वाई निकाल देंगे तो फ्रेंड। फॉलन, फॉलन का स्टार्टिंग का एफ निकालेंगे और लास्ट का ई एन निकालेंगे तो ऑल वर्ड बनता है, राइट। अगर आप फॉल लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमको इसके सारे दोनों अफिक्सेस निकालने हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों, तो ऑल इज द रूट वर्ड। अनकाइंड, अनकाइंड से हम अन निकाल देंगे, काइंड वर्ड आ जाए। और वुडन, वुडन से ई एन निकाल देंगे वुड। लकीली में से आई एल वाई निकाल देंगे और लक, एल यू सी के लक। बिलोंगिंग में स्टार्टिंग में बी ई बी निकाल देंगे एंड लास्ट में आई एन जी निकाल देंगे तो लॉन्ग, एल ओ एन जी। ओके, नाउ फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हम स्टोरी में से हमें वर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं। फर्स्ट वर्ड इज अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ। तो स्लोपिंग रूफ, स्मॉल वन वर्ड फॉर दैट इज एटिक, राइट, ATTIC. A very narrow passage between buildings, alley, ALLEY. The highest ranking officer in the municipality of a city or town, mayor, MAYOR. The highest ranking official who commands a ship, captain. Any animal that catches mice, cat. A low constant sound made by cats. cat कौन सा आवाज़ करती है? धीरे धीरे बोलेंगे तो पुर पुर, PURR PURR। ओके, म्याऊ भी लिखते हैं कई लोग, आप म्याऊ भी लिख सकते हो, MEOW म्याऊ म्याऊ, बट ये जो लो कांस्टेंट साउंड बोला है दैट इज पुरपुर। ओके, नाउ मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस हमको बनाना है। फर्स्ट इज ओवरकम, आई एम ब्रेव इनफ टू ओवरकम ऑल माई डिफिकल्टीज। एक सेंटेंस हो गया, आई एम ब्रेव इनफ टू ओवरकम ऑल माई डिफिकल्टीज। Put up with, I have to put up with my aunt's scolding to complete my education. I have to put up with my aunt's scolding to complete my education. Then next, bargain. On the entrance gate of the shop was written, no bargain please. On the entrance gate of the shop was written, no bargain please. ठीक है, अब ये जो है स्टोरी आप रीड करके इसके नंबरिंग डालोगे, ये आप आसानी से कर सकते हो। नाउ थिंक एंड आंसर, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज्ड हिज फॉर्च्यून? द डिसीजन टू रिटर्न फ्रॉम हॉलोवे बैक टू मिस्टर फिट्जवॉरेन्स हाउस, राइट, दिस वॉज द डिसीजन। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर्स? The message that brings out for youngsters is you never know what may happen next to you in your life, so you can give away with small difficulties to get something big in your life. अब ये syllables बनाना है, syllables I believe आप कर लोगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको syllables बता दिया था। तो belonging, सब लोग यहाँ पे देखो, belonging, right, उसी तरह से morning, unfriendly, citizen, anything, ये anything जो है पहले a आएगा, that is an e thing, y this, मतलब ये 3 syllables हो जाएगा। message, 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 2 words हो गए, 2 syllables। difficulty, 4 syllables। mayor, 2 syllables। captain, 2 syllables। elected, 3 syllables।
ओके, अब यहाँ पर हमें डिग्रीज करनी है डायरेक्टली। देखो डिग्रीज वाला तो मैंने है ना ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है डिग्रीज के लिए, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। वैसे यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर्स बोल रही हूँ, एक्सप्लेनेशन में उसी में लूँगी। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। अब यहाँ पे कंपैरेटिव में दिया हुआ है ईजियर, तो पॉजिटिव में आएगा ईजी, EASY, एंड ईजीएस्ट, सुपरलेटिव में ईजीएस्ट, EASIEST। वर्स है तो वर्स का आप बैड या इल दोनों लिख सकते हो, बैड और इल, और सुपरलेटिव में वर्स्ट, WORST। पुअरेस्ट दिया है सुपरलेटिव में तो पॉजिटिव में पुअर, कंपैरेटिव में पुअरर। लेजीएस्ट दिया है सुपरलेटिव में तो पॉजिटिव में लेजी, कंपैरेटिव में लेजियर। लिटिल दिया है आपको पॉजिटिव में तो लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल का कंपैरेटिव में लेस आएगा, LESS, एंड सुपरलेटिव में लीस्ट। नाउ वर्दियर आपको कंपैरेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में वर्दी, WORTHY वर्दी, सुपरलेटिव में वर्दीएस्ट। पॉपुलर दिया है आपको पॉजिटिव में मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ये इस तरीके से आपके डिग्रीज बन जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको सॉल्व करके दिया है। कुछ चीज़ें आपके लिए रखी है जो आप कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे दीजिएगा, मैं आपको वो भी सॉल्व करके दे दूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।